Okay. Yeah, my PPT is visible, right? Yes, sir. Yes. Yes, yes. Okay, okay, okay. Okay, so good evening, everyone. My name is Tanmay, and I am third year production student at SCOE. And also, I am the head of Aerostructure and Analysis department at Space Rocketry. So, today is our final training session, and it is the second day of designing training, also. Okay, so what we are going to do is today we will understand what is simulation and what is analysis and how to perform simulation and analysis using Fusion 360. Okay, so this will be the today's content. Okay, so first we'll try to understand what is analysis. Like you guys must you guys can anticipate by the word analysis, but what we'll do is we'll take a simple cricket example to understand why we do analysis. After that, we will look some problems, like how to solve engineering problems. Okay, we will look some methods, and after that we will start with the basic of FEA. Okay, and simply we will understand every concept of the process of FEA, how FEA solve the problem, applications of FEA, and then finally we will see some steps which will be required to perform a simulation. Okay, so yeah, so let's start. Okay, so for this question is for everyone. Okay, I'm hoping that all of you guys are aware of cricket. Okay, so just tell me what happened before a cricket match. This question is for everyone. Okay, Toss. 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 Okay, okay, okay. What else? Yeah, only सिर्फ टॉस ही होता है क्या? Like there must be something else. नहीं, बहुत कुछ होता है, मतलब प्रिपरेशन भी तो होता है ना। Preparation. Okay. ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस करते हैं वो Training, लोग, practice. टीम Okay. सिलेक्शन होता है। Okay. Okay. Nice. Okay. What about others? Come on, tell. Huh? Warm up. Okay. Warm up. Okay. 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 Nice. 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 So yeah. So how we can compare our analysis with the cricket? Okay. So first of all, uh, the first thing is done is pre-analysis. Okay. So here in the picture you can see that the players are analyzing the pitch. Okay. Why they are analyzing the pitch? Just to understand that. Okay, so in the picture you can see that these players are analyzing the pitch. Okay, so why they are analyzing the pitch? Just to to understand whether the pitch is dry or whether is it wet, or will the ball will turn over it more or less. Okay, so for that analysis is done. Okay, before the game, and after the analysis is done, what they do is they take decision. ठीक है, सो टॉस जब होता है क्रिकेट मैच में, तब वो बैटिंग या बॉलिंग लाइक फर्स्ट कैसे डिसाइड करते हैं बैटिंग लेनी है बॉलिंग लेनी है. ठीक है, अगर पिच पे बॉल ज़्यादा टर्न हो रहा है या फिर कम टर्न हो रहा है, ठीक है, बैटिंग पिच है या फिर बॉलिंग पिच है, उसको स्टडी करके टॉस के वक्त दे डिसाइड वेदर टू चूज बैटिंग और बॉलिंग. ओके, so the second part is the decision. What happen after decision is the planning. Okay, we have the input. ठीक है, अपन ने एनालाइज करके सब पेपर वर्क है सब डिसीजन कर लिया है. ठीक है, तो उसको मतलब उसका एप्लीकेशन कैसे करें, तो उसके लिए अपने को प्लानिंग करनी पड़ती है. ओके, सो द प्लानिंग इज डन. ओके, after then planning the execution is done by the players. Okay, so the game of the player is depend on the pre-analysis, decision and the planning. ठीक है, तो ये सब मिला के हम एग्जीक्यूशन करते हैं. ठीक है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन वी हैव द रिजल्ट. ओके, एंड आफ्टर रिजल्ट वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड द पोस्ट एनालिसिस. ओके, सो अगर जस्ट एक एग्जांपल. ठीक है, अभी एक प्लेयर है. ठीक है, and he had played only one match. Okay, and in that one match he has scored a brilliant century. So उसकी एक गेम की परफॉर्मेंस से उसको बेस्ट प्लेयर तो डिक्लेयर नहीं कर सकते. ठीक है, अगर किसी प्लेयर को अगर बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर करना है तो उसका ही शुड हैव प्लेड एटलीस्ट 10 to 15 मैचेस. ठीक है, और जो इफ़ ही हैड प्लेड 15 मैचेस
एंड इन दो 15 मैचेस ही हैज़ बेटर स्ट्राइक रेट, ठीक है। 15 मैच में से उसने 10 मैच में अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से लाइक 10 to 15 मैचेस का एक कंक्लूजन, ठीक है, एक समरी बना के उसका हम परफॉर्मेंस रेट करेंगे, ठीक है। सो लाइक दैट, okay, like so how we are going to use this method to solve our engineering problems. What we are going to do is, first we will pre-analyze our material, ठीक है। we will first pre-analyze our problem first of all, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है अपने पास, ठीक है, तो उसको उसका पहले स्टडी करने का, ठीक है। स्टडी होने के बाद उसको डिसाइड उस पर उसका मटेरियल सिलेक्शन करने का, ठीक है, कौन सा मटेरियल बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर बाद में जो मटेरियल अपन ने सिलेक्ट किया उस मटेरियल का टेस्टिंग करने का, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, ओके। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ओके, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। और टेस्टिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का अपन पोस्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एक जो मटेरियल अपन ने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, और उसका एक रिजल्ट आया है, ठीक है। और एक ही रिजल्ट से वी विल नॉट वी रिक्वायर वेरियस वैलिडेशन, ओके। एक ही कंपोनेंट पे 3 से 4 टेस्टिंग करने की, ठीक है, और इन सब का एक एवरेज वैल्यू निकालने का। और जो अगर वो एवरेज वैल्यू अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू से मैच कर रहा होगा तो यस, दिस कंपोनेंट इज सेफ, ओके। सो लाइक दिस we can understand how analysis work, okay। So after that, there are various method to solve engineering problem, but the most common method that we use are the physical experimental method, the second one is analytical method, and the third one is approximate numerical method, okay। So with the name you can say that what is the फिजिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, जो अपन अपने प्रैक्टिकल लैब में करते आ रहे हैं, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, दैट इज नथिंग बट एक्सपेरिमेंटल मेथड, ओके। सो व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस मेथड, ओके। we have the actual measurement over here, okay, and the con is that it is a time consuming, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो फिर उसके लिए तो टाइम लगता ही है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज वी रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट, ओके, वी रिक्वायर्ड अ वर्क पीस to perform that experiment, we required a special lab, we required a safety equipment, okay। So it is expensive, and the great thing about the physical experimental method is it gives us the real result, okay। And also it required a validation, okay। So this is the big con, because why it required a validation is because there may be a experimental error, instrumentation error, human error, okay। So एक ही एक्सपेरिमेंट का मतलब कंक्लूजन अपन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट 2-3 बार तो भी करना पड़ेगा अगर फिजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो। उस हिसाब से लाइक इट डेफिनेटली रिक्वायर्ड वैलिडेशन। अगर कोई बंदा है जो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उससे कभी कभी एरर हो सकती है, ठीक है। तो so like we have to perform like 2 to 3 times one experiment for 2 to 3 times just for the validation, okay। And here is the example, you can see that the measurement of screw thread parameters using a floating carriage micrometer, okay। So to perform this type of experiment what we need is we require a micrometer, okay, and we also require some measuring instrument, okay, some other instrument. We also require the screw and all, like this is time consuming, it required a skill also to perform the experiment. So like that, this is the first method, okay, to solve the any engineering problem. The second method is analytical method, which has the classical approach, which means जो आप लोग स्कूल से करते आ रहे हो, ठीक है। लाइक एनालिटिकल मेथड एक लाइक फार्मूला रहता है, ठीक है, एक फिक्स फार्मूला रहता है, उसमें से वैल्यूज दी रहती है, आपने को सिर्फ फार्मूलाज में वैल्यू पुट करके आउटपुट लेना है, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल इक्वेशन, ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। ऐसा एक इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, इसमें v विल बी गिवन, u विल बी गिवन, a विल बी गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड t, okay। So just simply we have to put values and we have to obtain finding अनगिवन वैल्यू, ओके। सो एनालिटिकल मेथड जो मतलब आप लोगों ने स्कूल में किया होगा, 12th स्टैंडर्ड तक किया होगा, ठीक है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, ओके, इट गिव्स अस एक्यूरेट 100% solution, and it has the con, okay, it has the con, okay, one con,
it is applicable for only simple problem, and also it is applicable for only simple geometry. So what is mean by simple geometry means, like सिंपल ज्योमेट्री मीन अगर सर्कल है, ठीक है, इसका सर्कमफरेंस फाइंड करो, आर दिया होगा, ठीक है, ट्रायंगल है, एरिया फाइंड करो, बेस और हाइट दी होगी, ठीक है. सो इन टाइप्स के ज्योमेट्री में ये एनालिटिकल मेथड एप्लीकेबल है. एंड ऑब्वियसली इट डजेंट रिक्वायर एनी वैलिडेशन, क्योंकि आपने को डायरेक्ट 100% एक्यूरेट सोल्यूशन मिलता है, तो फिर वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं. ओके, एंड हियर यू कैन सी द एग्जांपल. ओके, यू हैव अ रॉक विथ अ वॉल्यूम ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब एंड अ मास ऑफ 45. सो व्हाट इज द डेंसिटी? ओके, सो कोई बता सकता है? ये अपने पास वॉल्यूम दिया है, ठीक है, मास दिया है, तो डेंसिटी कैसे फाइंड करें? कोई बता सकता है मुझे? Yeah, obviously. So the analytical method is completely based on the formulas. Okay, so yeah, so this is the second method, and the third method is the approximate numerical method. Okay, so this method is used to solve like complex problem. Okay, so first of all, it is completely based on the assumption. Okay, so assumption means like if I have one problem, okay, so I have to predict the solution of that problem. Okay, so like I have to assume that yeah, with this method I can solve this problem, or this method will be more advantageous for me. Okay, so we have to first assume in the numerical method. Okay, and obviously it is applicable for the complex problem, जो मतलब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन रहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कैलकुलस के इक्वेशंस रहते हैं, उनके लिए ये न्यूमेरिकल मेथड एप्लीकेबल है. एंड ऑल्सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री. ठीक है, लाइक दिस सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ऑल these are all simple geometry, and complex geometry means like which does not have a definite shape. Okay, मतलब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री मतलब कुछ भी शेप होगा. ठीक है, लाइक पिस्टन ले लो, आईसी इंजन ले लो. ठीक है, तो दिस मेथड इज यूज फॉर so to solve the complex geometry, numerical method is used. Okay, and it has the fast solution. Okay, so how does it have a fast solution? Because approximate numerical method are solved using a software. ओके, सो ये जो पहले जो एक्सपेरिमेंट मेथड्स है ना, ये लाइक इनमें सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं होता, बट न्यूमेरिकल मेथड में सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है. सो सॉफ्टवेयर सच एज एनसिस, एनसा, फ्यूजन 360 वी कैन से. ओके, सो numerical method is solved using a software. That's why we have a fast solution. Okay, and once validate, okay, एक बार अपन ने सॉल्व किया तो इट कैन बी इजीली एक्स्ट्रापोलेट मीन्स लाइक अपन अंदाज लगा सकते हैं. ठीक है, एक बार सॉफ्टवेयर ने मुझे एक आउटपुट दिया, ठीक है, कि ये कंपोनेंट इतना स्ट्रेस झेल पाएगा. ठीक है, सो मैं लाइक मुझे 2-3 बार वापस वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लाइक अंदाज़ लगा सकता हूँ कि ठीक है चलेगा, ये अभी मैंने 2 सेंटीमीटर थिकनेस का कंपोनेंट लिया और ये इतना स्ट्रेस झेल पा रहा है, तो फिर लाइक मुझे ज़्यादा लाइक मास वगैरह या फिर मटेरियल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो आई कैन ईजिली मेक अ जजमेंट फॉर दैट कंपोनेंट. ओके, सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द न्यूमेरिकल मेथड. एंड द एग्जाम्पल यू कैन सी दैट, ये देखो, लाइक दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर सॉल्व यूजिंग द न्यूमेरिकल मेथड. ओके, सो अभी तक मतलब कोई डाउट है क्या? अगर कुछ समझाने होगा तो फिर बोल सकते हो, or else if I am going fast then you can tell me to slow down. हेलो, हाँ तो मैं भाई समझ रहा समझ रहा. हाँ. ओके, लाइक अगर फास्ट जा रहा हो तो फिर बोल देना. ठीक है, फिर आई विल गो बिट स्लो. हाँ बिल्कुल. ओके, सो इतना याद रखना, ठीक है, कि ये 3 मेथड है, और या वी विल यूज़ ऑल 3 मेथड. ओके, हम तीनों भी मेथड यूज़ करने वाले हैं अपने लाइक डिज़ाइनिंग के समय. एंड ओके, सो yeah, so let's start with the finite element analysis. ठीक है, so FEA is carried using software. Okay, this is completely software based theory. So first let's go with the definition. Okay, अभी what definition says that FEA is a numerical method for obtaining an estimated solution has become a key component in design and development of many engineering systems. Okay, so let me tell you what is this. FEA is a numerical method, ठीक है, for obtaining an estimated solution, which means an assumption. Okay, FEA आपने को एक assumption solution देगा, and it has a wide
range of application, okay, a wide application in almost all of the industry, all of the engineering industries, such as this many, okay, जितने भी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, लाइक स्मॉल स्केल से लेके तो बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री तक, सब में एफईए का यूज़ किया जाता है, ओके, एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, ठीक है, जितने भी लाइक इंडस्ट्रीज है, एफईए इज डन ओवर देयर. एंड ऑल्सो देयर इज वन फन फैक्ट, ओके, so FEA is also used in a chocolate factory. Why? Just to make sure that the chocolate does not get break while packaging. Okay, वो जो चॉकलेट रहता है ना, उसका मतलब पैकिंग भी करना पड़ता है, तो उस पर भी फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि वो ब्रेक ना हो. ज़्यादा टाइट किया और चॉकलेट ब्रेक हो गया तो फिर उसकी भी टेस्टिंग की जाती है. ओके, सो लाइक FEA हैज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज. Okay, and yeah, so there is a question, how FEA solves problem, मतलब how solve कैसे करता है वो problem. तो here is something that say that FEA converts a complex partial differential equation, okay, into a simple algebraic equation, which is then calculated using the matrix algorithm to yield a final value. Okay, so what it is saying that जो अपना लेट्स या विद एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इफ यू डू इज इट विल टेक दिस इक्वेशन एंड इट विल कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इनटू अ सॉल्वेबल अल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है. सो दिस इज एवरीथिंग इज डन इन द सॉफ्टवेयर. ओके, व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू गिव बाउंड्री कंडीशंस. अब इस केस में बाउंड्री कंडीशन क्या रहेगी, y इज इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल वैल्यू लाइक दैट. ओके, y की वैल्यू, x की वैल्यू, कुछ तो भी रेंज और डोमेन दे देंगे बाउंड्री कंडीशंस में हम, ठीक है. एंड व्हाट द सॉफ्टवेयर विल सिंपली डू इज इट विल कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इनटू algebraic इक्वेशन, एंड फर्दर द सॉफ्टवेयर विल सॉल्व दिस algebraic इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स एल्गोरिदम, ठीक है, विच इज कॉल्ड द गॉस एलिमिनेशन थियरम, ठीक है. सो FEA मीन्स मोस्ट ऑफ द जितना भी कैलकुलस मैथमेटिकल वाला पार्ट है, FEA सॉल्व करके देगा अपने को, ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट. ओके, सो या सो लाइक समझा के व्हाई, लाइक हाउ FEA सॉल्व्स प्रॉब्लम. आप लोगों को समझा के एक बार बाउंड्री कंडीशंस एक्सप्लेन करना, समझा नहीं. ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस क्या रहते हैं, लाइक अभी इन केस अगर देख, बाउंड्री कंडीशन मतलब हम कंस्ट्रेन ऐड करते हैं, ठीक है, फोर्स ऐड करते हैं. अगर कोई भी मॉडल का अगर टेस्ट करने वाले, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि इट विल हैव ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, इट विल रोटेट अलॉन्ग ओनली y डायरेक्शन. सो लाइक दैट बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन. बाउंड्री कंडीशन हम देते हैं, ठीक है, इस प्लेन पे इतना फोर्स एक्ट होने वाला है, ठीक है. सो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस हम लाइक y इज इक्वल टू लाइक सम वैल्यू, ठीक है, y इज इक्वल टू इन द रेंज ऑफ 0 to 10 इन दैट वे, ठीक है, x का डोमेन 5 to 10 रहेगा, ठीक है. सो ये मैथमेटिकल पार्ट में आ गया, ठीक है. वी डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दिस. ओके, हम जब एक्चुअल मॉडल करेंगे ना, सिमुलेशन करेंगे ना, तब बाउंड्री कंडीशंस हम कंस्ट्रेन या फिर फोर्स या फिर प्रेशर, ठीक है, इस फॉर्म में देंगे. ओके, समझा क्या? ओके, सो एक्चुअली एखादा एग्जांपल जब सॉल्व करके देखोगे तो समझोगे. यस यस यस, जब अपन एक्चुअल सिमुलेशन करेंगे ना, तब आई विल टेल अबाउट द बाउंड्री कंडीशंस. ओके, सो या द प्रोसेस ऑफ द FEM. ओके, सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो फिर ध्यान देना इस पे. सो let's read what is this first. Okay, a continuous elastic structure divided into a smaller well defined substructure called elements. Okay, and elements are connected together at nodes and nodes have degree of freedom and this process is known as meshing. ठीक है, अगर कुछ समझाना होगा तो फिर अभी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोगों को तुरंत समझ आएगा, ठीक है. सो या फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी डू मेशिंग इज जस्ट टू कन्वर्ट इनफाइनाइट प्रॉब्लम इनटू अ फाइनाइट प्रॉब्लम. ठीक है, अगर किसी ने पूछा मेशिंग क्यों करते हो, सो सिंपली टू कन्वर्ट इनफाइनाइट प्रॉब्लम इनटू अ फाइनाइट प्रॉब्लम. ओके, सो हाउ, हियर वी विल सी इट. ओके, सो कंसिडर दिस इज अ प्लेट ऑफ अ कंटिन्यूअस डोमेन. ठीक है, ये एक मेटल की प्लेट समझो. ठीक है, सो ये मेटल का प्लेट का जब अपन माइक्रो स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो उस पर मतलब एक छोटे छोटे एकदम ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे अपने काफ़ी सारे. ठीक है, उन पॉइंट्स को नॉट्स बोलते हैं. ठीक है, नॉट्स बोलो या फिर ग्रेन्स बोलो. ठीक है,
सो ये जो नॉड्स है ना, ये मतलब काफ़ी सारे हो गए, मतलब ओके। ये इसका अगर माइक्रो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ठीक है, ये प्लेट है। अब मुझे ये प्लेट का ना इक्वेशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो हाउ कैन आई क्रिएट द इक्वेशन? सो फॉर दैट what I will do is I will use these nodes, okay। इस प्लेट पे जितने भी नॉड्स रहेंगे ना, उससे मैं इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। सो लाइक कोई मुझे बता सकता है कि लाइक दिस ये प्लेट पे कितने नॉड्स हो गए? लाइक कोई ऐसा आइडिया होगी क्या किसी को? Infinite. Okay, infinite, yes, obviously it will have a infinite number of nodes, ठीक है। काफ़ी छोटे रहेंगे एंड इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। अगर इस प्लेट पे इनफाइनाइट नोड्स है तो फिर इक्वेशन कैसे बनेगा, ठीक है। सो देयर इज ऑल्सो वन थिंग, ओके। इट विल हैव ऑब्वियसली इट विल हैव इनफाइनाइट नोड एंड ईच नोड विल हैव 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। सो हाउ इज दैट, ठीक है। सो लेट्स जस्ट अज्यूम दैट दिस इज वन ऑफ द नोड, okay, and this node has the 6 degree of freedom, which means this node can travel to y direction, it can also travel to x direction, and it can also travel to z direction, okay। ये हो गए 3 ट्रांसलेशन, ठीक है। एंड it can also rotate along y direction, it can also rotate along x direction, and it can also rotate along the z axis, which means 3 rotation that gives us 6 degree of freedom, ठीक है। So each node has 6 degree of freedom, and in this plate we have infinite number of nodes, so the total number of equation to be solved is the infinite, okay। किसी को डाउट है क्या? अरे वो जेड वाला रोटेशन समझा नहीं। अरे देख, 3 डायरेक्शन रहते हैं ना, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो वो जो नॉड है ना, वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, एंड जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, एंड अलॉन्ग ईच एक्सिस इट कैन रोटेट, ठीक है। सो मूव कर सकता है, लाइक ये जो नॉड है ना, इसको मैं इधर भी मूव कर सकता हूँ, इधर भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। वाई डायरेक्शन में ऊपर नीचे भी मूव कर सकता हूँ, एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट एंड राइट भी मूव कर सकता हूँ। प्रशांत भाई, एरोप्लेन का एग्जांपल लेते हैं अभी। एरोप्लेन तुम्हारा इस तरह से ये पिच भी कर सकता है, तो पिच अप पिच डाउन एक डायरेक्शन हो गया। वो रोल भी कर सकता है, तो वो तुम्हारा हो गया एक डायरेक्शन। और वो यॉ भी कर सकता है, तो लाइक वो भी एक डायरेक्शन हो गया। सो रोल, पिच एंड यॉ भी तुम्हारे इस पे 3 चीजें आ जाती है, अलोंग विद दोस ट्रांसलेशनल मूवमेंट्स। समझ रहे हो क्या? हाँ ठीक है, लाइक मतलब जो 3 एक्सेस रहते हैं ना, उन 3 एक्सेस पे मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये नॉड्स। एंड ऑल्सो वो 3 एक्सेस पे अलॉन्ग रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट मेक्स 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ईच नॉड, ओके। एंड या, सो इट हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन। सो व्हाट वी विल डू इज I will simply just use our software and we will use this command, okay, the meshing command। so जब meshing करते हैं ना, तब क्या होता है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ नॉड्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है। सो सिंपली हियर यू कैन सी दैट हियर वी हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉड्स, एंड आफ्टर मेशिंग इज डन वी हैव कन्वर्टेड द इनफाइनाइट प्रॉब्लम इनटू अ फाइनाइट प्रॉब्लम, ठीक है। अब हियर वी कैन सिंपली जस्ट कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉड्स ओवर हियर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल द ये जो है, ठीक है, ये नॉड्स है, ठीक है, ये जो गोल गोल है। एंड हियर इन द डिफिनेशन यू कैन सी दैट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर एट नॉड्स, ठीक है। सो ये जो बॉक्स है, जो नॉड से बना हुआ है, ठीक है, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, ओके। सो या, सो हियर वी हैव द नंबर ऑफ पॉइंट्स 30, ठीक है। we have 30 number of nodes over here, and each node has 6 degree of freedom, okay। So the total number of equation to be solved is only 180, okay। So like that, what the benefit of meshing is that it convert an infinite problem into a finite problem, and then further we can use the FES. Further the FEA will use these all 180 equations to give us the required result, okay। So समझा क्या, ये FEM की प्रोसेस समझे क्या आपको? या यस ओके। जब अपन सॉफ्टवेयर में करेंगे ना, तब आपको मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ओके। मैकेनिकल वालों ठीक से देख लो, 4th ईयर में सब्जेक्ट ये है। अरे एकदम Okay, okay, so yeah, so let's just move to our software, okay।
So the step to perform the simulation on Fusion 360. So yeah, the what is the first step? Either डिज़ाइन करो या फिर import करो, ठीक है, अपना CAD. If so, let's just what we will do is we will import the component. Okay, so what we are going to do is we are going to perform FEA testing on this thrust bulkhead. ठीक है. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस थ्रस्ट बल्कहेड. ठीक है, ये जो बल्कहेड है ना, इसका फंक्शन वेट मैं आपको मॉडल ही दिखाता हूँ. कोई भी कंपोनेंट पे टेस्ट करना रहा तो उसका लाइक फंक्शन क्या है, ठीक है, फोर्स किधर अप्लाई होने वाला है, ये सब अपने को प्री एनालिसिस में मालूम होना चाहिए. ठीक है, ऑन पेपर ये सब जानकारी मालूम होनी चाहिए अपने को. सो ओके, लेट्स जस्ट अपडेट दिस. ओके, सो ठीक है. सो ये जो वाला बल्कहेड है ना, ठीक है, इस पर हम FEA टेस्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो हाउ, ओके, हाउ वी कैन परफॉर्म. सो ये जो बल्कहेड है ना, इसका मेन काम क्या है, इस पर ये जो मोटर है, ठीक है, इसको आगे नहीं आने देना है. ठीक है, ये मोटर को पकड़ के रखेगा. ठीक है, सो मतलब लेट्स जस्ट अज्यूम दैट दिस मोटर इज गिविंग द फोर्स ऑफ 500 न्यूटन. तो फिर ये बल्कहेड पे पूरा 500 न्यूटन का फोर्स एक्ट होने वाला है. ठीक है, ये पीछे वाले डायरेक्शन पे, ठीक है, ये वाले डायरेक्शन पे. ठीक है, इधर मोटर का फेस रहेगा और इस फेस पे 500 न्यूटन का फोर्स एक्ट होने वाला है. ठीक है, एंड फिक्स कौन सी जगह है. ठीक है, एंड ये जो बल्कहेड है ये अपन ने बॉडी ट्यूब को इधर बाहर से फिक्स किया है. ठीक है, सो ये समझा क्या आपको, ये पर्पस क्या है इसका, सिंपली मोटर को पकड़ के रखना. ठीक है, so yeah, so we know what is going to happen to this bulkhead. So we will perform test as per. Okay, so before starting the simulation, what we have to do is the second step is, yeah, we have to assign the physical material to it. Material plays like the most important role in this. Okay, so मटेरियल अपने को ऐसा सिलेक्ट करना है, लाइक ज़्यादा हल्का भी नहीं यूज़ करना है और ज़्यादा हेवी भी नहीं यूज़ करना है. ठीक है, सो जो अफोर्डेबल रहेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहेगा. ठीक है, वैसा वाला मटेरियल अपने को यूज़ करना है और हल्का भी रहेगा. ठीक है, सो फॉर दिस वी लेट्स यूज़ एल्यूमिनियम. ओके, सो इन द मॉडिफाई यू विल सी द फिजिकल मटेरियल एंड वी विल फाइंड एल्यूमिनियम ओवर हियर. ओके, सो देयर आर बेसिकली मेनी ग्रेड्स ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, हर एक ग्रेड का अलग अलग प्रॉपर्टीज रहते हैं, अलग अलग शेयर मॉड्यूलस, डिफरेंट यील्ड स्ट्रेन, डिफरेंट टेंसाइल स्ट्रेन. ओके, सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट सिलेक्ट द नॉर्मल एल्यूमिनियम. ओके, सो आई कैन सिंपली जस्ट ड्रैग ओवर टू द component. Okay, so yeah, so this component now has the material of aluminium. Okay, so yeah, the assigning material is done, and the next step is yeah, to create a static study simulation. Okay, we are going to perform the static study simulation. So for that in the design, जब ट्रैक डाउन करोगे तब इधर सिमुलेशन का ऑप्शन दिखेगा. ठीक है, वी विल क्लिक ओवर दैट एंड वी हैव टू क्रिएट द स्टैटिक स्टडी सिमुलेशन. ठीक है, अब फ्यूजन पे काफ़ी सारे हैं. ठीक है, स्टडीज़, बट ऑल दिस स्टडी रिक्वायर्ड द क्लाउड क्रेडिट. ठीक है, द स्टैटिक वन इज़ फ्री. ठीक है, और बाकी के ये जो है बकलिंग हो गया और इन सबको है ना, इधर देखो क्लाउड का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब दे रिक्वायर्ड अ क्लाउड क्रेडिट. ठीक है, ये फ्री वर्जन में आता नहीं है, एंड ईच वन क्लाउड क्रेडिट इज इक्वल टू $1. ओके, सो अरे ठीक है, स्पॉन्सरशिप दिला दूंगा आपको, गढ़ में करना. ओके ओके ओके, सो अभी के लिए तो स्टैटिक स्टडी फ्री है. ठीक है, तो वी विल परफॉर्म द स्टैटिक सिमुलेशन ऑन इट. सो या, जस्ट सिंपली द सिलेक्ट द स्टैटिक स्ट्रेस एंड क्रिएट द स्टडी. Okay, so here you will see the tools which are required to perform the simulation. Okay, so yeah, we have created a static study, and yeah, we have to verify the material property. Okay, so let's just do that.
Okay, so for that, here you can see that the material, okay, like as I have said before, that the material plays the most important role. Okay, so we have to make sure that we are using the right material for our component. Okay, so here in the material, we will just simply cross verify. Okay, aluminum है. Okay, this is our thrust plate, and yeah, safety factor is steel strength. Okay, so yeah, aluminum is completely applied to it, and we can also see the properties. Okay, so these are the properties. Okay, it density, Young's modulus, Poisson's ratio. ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपन गूगल पे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, करेक्ट है क्या नहीं. तो yeah, this is the properties, and yeah, after that what we have to do is, yeah, we have to generate the mesh. Okay, so if anyone remember why we do meshing. To create that infinite problem को finite में create करने या के या लिए. या 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 यस. ओके, सो अगर इसका मुझे लाइक इक्वेशन बनाना है तो फिर कैसे बनाऊँ. ठीक है, इस पर तो कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स रहे. तो फिर व्हाट आई विल डू इज, हियर यू कैन सी दैट द मेश ऑप्शन. ओके, इट इज़ नॉट येट क्रिएटेड. सो व्हाट आई विल डू इज, ओके, सो फर्स्ट लेट मी टेल यू वन थिंग. ओके, सो जो मेश का जो ग्रेन साइज रहता है ना, वो मतलब हम छोटा भी कर सकते हैं. लाइक बहुत अभी ये वाली पीपीटी में देखो. ठीक है, सो इधर है ना, ग्रेन साइज काफ़ी बड़ा है. ठीक है, तो इससे भी छोटा भी कर सकते हैं. लाइक देयर आर 3 साइज फॉर ग्रेन्स. ओके, कोर्स, मीडियम एंड फाइन. ठीक है, फाइन ग्रेन्स आर दी लाइक स्मॉलेस्ट ग्रेन, वो काफ़ी छोटा रहता है, और मीडियम वाले भी काफ़ी छोटे रहते हैं. सो मोस्टली व्हाट वी डू इज वी डू द कोर्स ग्रेन. ठीक है, लाइक जो इजीली विजिबल हो. ठीक है, और जिसको मतलब ज़्यादा ऐसा हाई हाई सिस्टम वाला लैपटॉप की ज़रूरत ना हो. ठीक है, तो व्हाट विल डू इज वी विल कीप द साइज ऑफ द मेश डिफ़ॉल्ट. ठीक है, जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, क्योंकि अगर हम छोटा साइज करने जाएंगे ना तो वो टाइम भी उतना ही लेगा. ठीक है, सो लाइक सिंपली टू जस्ट टू जनरेट द मेश इट विल टेक लाइक 5 minutes, and that's a lot of time. Okay, so just keep the value default. Okay, and what you have to do is simply just generate the mesh. Okay, and the software will start generating the mesh. Okay, so let's see how much time it takes. हेलो. Yeah, बोल. अरे जो मतलब हर एक पार्टिकल रहेंगे तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेम होनी चाहिए ना. मीन्स अगर सपोज वो इसमें एक लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो एक एक्सिस में ट्रैवल करे तो एक सबके सब एक एक्सिस में ट्रैवल करेंगे ना. येस, बट इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स. ठीक आहे, सो लाईक आता जर का एका पॉईंटवरती फोर्स ॲक्ट होतोय. ठीक आहे, तर मग त्या ज्या पॉईंटवरती फोर्स ॲक्ट होत आहे ना, तर मग त्याचे ग्रेन्सची पोझिशन चेंज होणार. ठीक आहे, ज्याच्यावरती होत नाही ते एकाच ठिकाणी राहील. ठीक आहे, तो म्हणजे ते डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय करू ना, ज्या पॉईंटवरती फोर्स अप्लाय होतोय आणि त्या पॉईंटच्या ग्रेन्सची पोझिशन चेंज होणार फक्त, बाकीचे जसे तसेच राहतील. ट्रेनिंग मोस्टली ॲक्युरेसीसाठीच म्हणजे काय कमी जास्त करतो ना आपण. हो, जर का आपल्याला लाईक एकदम 100% ॲक्युरेट, हे बाई न्यूमरिकल मेथड ही अजम्पशनवाली मेथड आहे. ठीक आहे, ही 100% ॲक्युरेट नसतीच. ठीक आहे, सो इथे आपल्याला थोडंफार कमी जास्त तरी करायला लागतंच. आणि जेव्हा आपण जर का ग्रेनची साईज कमी केली, ठीक आहे, उलट आपल्याला ॲक्युरेट रिझल्ट तर भेटेलच, पण मग हे आहे ना, टाईम खूप घेणार जनरेट करायला. ठीक आहे, सो लाईक आपल्याला जर का फास्ट सोल्युशन पाहिजे तर मग जी आपली डिफॉल्ट साईज आहे मेशची तीच ठेवायची. किंवा जर का एकदम हाय ग्राफिक्सवाला लॅपटॉप असेल तर मग तिथे एकदा ट्राय करू शकता तुम्ही. ग्राफिक्स मेमोरी लगता है इसके लिए. यस, आई थिंक ग्राफिक्स मतलब लाइक लगता है इसको, मतलब अरे संग्राम के कंप्यूटर में तो ग्राफिक्स था नहीं, उस पे तो चल ही जा रहा था. वो एनसिस यूज कर रहा था. ये फ्यूजन वाला मतलब थोड़ा सा कमजोर है. अच्छा. एनसिस पे अपन नहीं, एनसिस पे भी नहीं कर सकते. मतलब मैंने ट्राई किया था ना, तो वो बोल रहे थे कि योर लैपटॉप डज नॉट सपोर्ट फाइन ग्रेन, ऐसा दिखाया था उन्होंने. अरे मिनिमम 2 GB लगता है. 2 GB नहीं, इंटीग्रेटेड भी. मेरा तो 6 GB, फिर भी मेरे इस पे नहीं चल रहा. बाप रे. पूरा गेमर है. स्मगल करो. ओके, सो लैपटॉप लेके कोई फायदा नहीं हुआ.
नहीं, कोर्स ग्रेन तो मिल रहा है इधर अपने को, तो फिर लाइक इट विल वर्क। अरे नहीं, जीपीयू का मेरे को नहीं लगता कुछ होगा, सीपीयू वाला रहता है। मैं भी अपने इस पे रन किया था ये चीज, तो लाइक सीपीयू रिसोर्सेज ज्यादा ही आ रहा था। अभी एक बार ये खोलना अपना क्या बोलते हैं, कंट्रोल पैनल। ओके, कंट्रोल पैनल नहीं, सॉरी सॉरी, टास्क मैनेजर, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, हाँ परफॉर्मेंस पे जा। ये देख सीपीयू यूसेज पूरा भारी है। ओ जीपीयू आइडल कर रहा है 30-19। ओके, हो गया। हम्म, ठीक है, सो देखो, अगर when we generate the mesh, it will look like this. Okay, so this is the coarse mesh. Okay, इससे भी अगर छोटा करना है तो फिर we have to just reduce this. Okay, so I will not do that. Okay, it will take a lot of time. So like देखो, इस हिसाब से mesh generate होता है. Okay, so yeah, we have generated the mesh, and what we have to do next? Okay, yeah, we have to add the constraint. Okay, so yeah, constraint या फिर बाउंड्री कंडीशन बोल दो, ठीक है। सो कंस्ट्रेंट क्या रहता है? कंस्ट्रेंट हैज कंस्ट्रेंट मीन्स लिमिटेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक कंपोनेंट है जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन पे मूव कर सकता है, ठीक है। तो उस पर मैं ना कंस्ट्रेंट ऐड करूँगा, लाइक लिमिटेशन ऐड करूँगा कि तू सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे मूव कर, ठीक है, वाई एंड जेड पे तुझे अलाउड नहीं है। सो लाइक दैट द कंस्ट्रेंट इज एडेड, या फिर मैं फिक्स भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो लाइक आई विल जस्ट गिव इट अ 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तू लाइक फिक्स कंस्ट्रेंट मीन तू किधर किधर भी मूव नहीं कर सकता और किधर रोटेट भी नहीं कर सकता। So in this case we have to add constraint to the point which are going to be fixed. Okay, so like कोई बता सकता है कि आप लोगों को क्या लगता है कौन सा पॉइंट फिक्स होगा इस कंपोनेंट में? होल पार्ट ही फिक्स्ड होगा ना वो स्क्रू से लाइक। ओके, या यस, जिधर अपन बोल्ट करने वाले हैं, ठीक है, ये पार्ट फिक्स रहने वाला है अपने, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल जस्ट सिंपली ऐड यूज क्लिक हियर। ओके, द टाइप विल बी द फिक्स and yeah, wait a minute, I will select this face. Okay, this, yeah. So I have selected the points which are going to be fixed. Okay, we have the 6 edges and yeah, so आप जिधर अपन बोल्ट करने वाले ना, ये ऊपर का पॉइंट फिक्स रहेगा, ठीक है। सो या वी हैव एडेड द कंस्ट्रेंट। व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? या वी हैव टू ऐड द स्ट्रक्चरल लोड। ओके, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस। सो या, सो लोड अभी लाइक इधर अपना मोटर का फेस रहने वाला है, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट अज्यूम दैट आवर मोटर इज क्रिएटिंग द force of 500 Newton, okay, on this plane. So what I will do is I will select this plane, okay, and here you can see the load option. Okay, what I have to give the structural load to it. Okay, load select किया, ठीक है, type will be the force. Okay, the face is selected and yeah, कितना फोर्स जनरेट कर रहा है? 500 न्यूटन का। ओके, एंड सिंपली जस्ट ओके, ठीक है। अब इस प्लेन पे 500 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो लाइक ये वाले प्लेन पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाला प्लेन फिक्स है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज, अब ये देखो, ये जो एलिमेंट बने हैं, ठीक है, ये एलिमेंट का शेप फोर्स लगने के बाद चेंज होगा। ओके, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सो या वी हैव एडेड द फोर्स। व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? या इफ प्री चेक इज ग्रीन, गुड टू गो। ओके, सो वी हैव टू जस्ट चेक। या सो कभी कभी क्या होता है, अगर कुछ अपने से रह जाता है, ठीक है, मैश में अगर कोई एरर आता है या फिर कंस्ट्रेंट गलत देते हैं या फिर लाइक कुछ अगर गलती हो जाती है तो फिर इधर एक रेड मार्क आता है, ठीक है। सो ठीक है, मैं एक अंडू करता हूँ, ठीक है। अभी देख, मैंने इधर फोर्स अप्लाई किया नहीं तो इधर रेड मार्क है। ओके, सो आई विल जस्ट डू द रीडू। ओके, सो इट इज़ द ग्रीन। ओके, सो वी आर गुड टू गो एंड या वी हैव टू सॉल्व। Okay, so
Yeah, we have just given the boundary conditions to it. We have generated the mesh and we just have to solve. Okay, so I will press the solve button, and yeah, here it will ask where to solve, on the cloud or in the locally. So if you have the good internet connection, you can save it on the cloud, or else if you want to perform this offline, then you can do it on locally. Okay, so ऑल्सो क्लाउड पे सेव करने के लिए ना क्रेडिट लगते हैं, ठीक है। अभी ये स्टैटिक वाला फ्री है, तो फिर इसमें आप कोई क्लाउड क्रेडिट नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी के जब आप सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए आपको क्लाउड क्रेडिट लगेगा। ओके, सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट सेव दिस टू लोकली, ठीक है। सो आई विल सेव इट इन माई डेस्कटॉप। सो या आई हैव सिलेक्टेड इट, इट इज द रेडी, ओके, टू सॉल्व, एंड आई विल जस्ट सिंपली प्रेस द बटन सॉल्व। So I think it will take like 2 minutes to solve. Okay, so तब तक अगर किसी को कुछ समझाने होगा तो फिर you are free to ask. वो 500 न्यूटन लाइक हमने लाइक मोटर से लाइक वो हमें वैल्यू मिलती है क्या? यस, मोटर देख, मोटर 500 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। और वो मोटर ना और जो बल्केट जो है ना, उसका काम क्या है कि मोटर आगे ना आए, इसलिए हम उसके मोटर के सामने वो बल्केट रखते हैं, ठीक है। सिंपली वो बल्केट वो मोटर को पकड़ के रखेगा अपना बल्केट। अगर मोटर 1000 न्यूटन का फोर्स जनरेट करी तो फिर अपन उस बल्केट पे 1000 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगी, अप्लाई करेगी। और अननोन फोर्सेस जब होंगे तब क्या क्या अननोन फोर्सेस अगर हुए किसी लाइक पार्ट पे, तो तब क्या कर सकते हैं? अननोन फोर्सेस हो गए तब वी जस्ट हैव टू अज्यूम देम, अज्यूम करना पड़ेगा अपने को। ये इंजीनियरिंग में बहुत कॉमन चीज होने वाला, मालूम है? तुम बहुत सारी चीजें अज्यूम करके चलोगे। Yes, this is also the assumption method. Numerical method is the assumption method. और बहुत एजुकेटेड गैसेस लगाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। लाइक क्योंकि लाइक स्पेस में लाइक ऊपर जाओगे तो लाइक उधर वेदर कंडीशंस तो तुम हर बार ये नहीं कर सकते ना, आउटर फेस पे कैसे फोर्सेस लगेंगे। अच्छा, तो तुम लाइक फ्यूसलाज पे बोल रहे हो क्या? हाँ, ये अभी सॉल्व करते वक्त अगर हमें कोई अगर फोर्स मालूम नहीं, अगर समझो आउटर शेल है तो उधर वेदर कंडीशंस के हिसाब से फोर्स लगेंगे ना अलग अलग। सी इस पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, मेरे को तो नहीं लगता वेदर का कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, लाइक एज फार एज आई सी इट। ओके, मतलब वेदर एक मैंने एग्जांपल दिया है, अननोन लाइक तुझे समझ रहा है, कोई भी टर्बुलेंसेस वगैरह आ सकती है। टर्बुलेंस पे अलग एनालिसिस होगा ना, ये हम मोटर का बल्केट पे कर रहे हैं सिर्फ अगले के लिए। फिर ये यहाँ पे क्या होगा, तुम समझ लो एक सिंपल प्लेट लेते हो, तुम उस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तुमको यहाँ कॉन्टूर दिख जाएगा कि किधर किधर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, ठीक है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा। और अगर कोई पार्ट तुम ऐसे देख रहे हो कि वो खाली रखा हुआ है, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तुम जितना भी लोड लगा रहे हो उस पर, तो तुम क्या करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे अपने डिजाइन को, राइट। मेरा ये पार्ट कुछ नहीं हो रहा, मैं इसको हटा देता, तो लाइक इसमें मेरा मास झट से कम हो जाएगा। एंड देन व्हेन यू लाइक पुट इट इनटू लाइक सम सॉर्ट ऑफ सिमुलेशन, तुमको उस पे ये अपने आंसर्स मिलेंगे। ये जो तन्मय ने बनाया है ये ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन है, उसने लाइक एक फ्लैट प्लेट से ही चालू किया और उसके बाद देगा स्टडी किया कि हाँ भाई ये इधर इधर फोर्स लग रहा है, मैं इतना ही तक में इसको रेस्ट्रिक्ट करके रखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई यू डू दीस काइंड्स ऑफ सिमुलेशन, मास ऑप्टिमाइजेशन। Also, like there are various tests we can perform such as buckling, ठीक है। अब ट्यूब का अगर ट्यूब पे मतलब देखो बकलिंग एक टेस्ट है, ठीक है, जो हम सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। एंड ट्यूब पे मतलब ज़्यादा इतना कुछ फोर्स एक्ट होने वाला तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेन जो फोर्स वाले जो कंपोनेंट है ना, वो अपना थ्रस्ट बल्केट रहा या फिर जो माउंटिंग वाले जो कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है, उन पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है। सो उन पर ही मीन्स वी हैव टू परफॉर्म द स्टैटिक स्ट्रेस सिमुलेशन। और जो बाकी के कंपोनेंट है उन पर मतलब डायरेक्टली तो फोर्स एक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये बल्केट जो है, ठीक है, इस पर डायरेक्टली फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए। एंड जो अदर कंपोनेंट्स है, ठीक है, अपना बॉडी ट्यूब हो गया वगैरह, नोस्कोन हो गया, उन पर डायरेक्ट फोर्स एक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। सो लाइक वी कैन एज्यूम कि हाँ ठीक है, ये मतलब इस पर इतना ज़्यादा कुछ फोर्स एक्ट होने वाला नहीं है। तो एक लाइक 100 न्यूटन या फिर 200 न्यूटन का एक बार टेस्ट करके देख लेने का। ओके, ओके, आई थिंक थोड़ा ही बाकी है।
बकलिंग का एक बहुत अच्छा एनिमेशन है मेरे पास, मैं शेयर करता तुम लोगों के साथ। Yeah, या सो व्हाट वी सी हियर इज ओके। सो हाँ, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बताना रहेगा, ठीक है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखो, कोई भी कंपोनेंट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 के नीचे नहीं होनी चाहिए और 6 के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वाई? अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 के नीचे है तो इसका मतलब कंपोनेंट इज कंप्लीटली अनसेफ, ओके। बदल दो, मटेरियल चेंज करो, थिकनेस बढ़ाओ वगैरह, ठीक है। बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 के नीचे नहीं होनी चाहिए एंड 6 के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। वाई? बिकॉज अगर 6 के ऊपर है तो इसका मतलब अपन खाली में मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिधर एक सेंटीमीटर थिकनेस से काम हो रहा है उधर अपन 2 सेंटीमीटर थिकनेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मस्ट बी इन बिटवीन 2 to 6, ओके। ये समझा क्या आपको? इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4.5 है, ओके। सो विच मीन्स इट इज़ लाइक अ सेफ कंपोनेंट फॉर अस। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का समझा क्या आपको? सबसे अच्छी लाइक कितने रख सकते हैं लाइक और बेटर करने के लिए, या लाइक 4.5 इज लाइक बेस्ट? या देख 2 to 6 के बीच में लाइक इट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। लाइक अगर देख 6 के आगे आगे अगर जा रहा है लाइक 7 या 8 आ रहा है तो भी मतलब एक्सेप्टेबल रहेगा, बट स्टिल लाइक जिधर अपना मतलब उसमें क्या होगा कि मतलब जिधर अपना 1 सेंटीमीटर प्लेट से काम हो रहा है उस उधर अपन 2 सेंटीमीटर प्लेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो ओवर डिज़ाइन कंपोनेंट हो जाएगा प्लस अपना मटेरियल भी वेस्ट हो जाएगा उसमें। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक 2 to 6 में सबसे लाइक बेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ऐसा कि लाइक सबसे ऑप्टिमाइज, कम से कम वेट में हम ज्यादा से ज्यादा ऐसा। वो तुम्हारे डिजाइन पे डिपेंड करेगा। तो समझ लो अगर मोटर की जो ये रिग्रेशन रेट है ना, वो थोड़ी अनस्टेबल हो गई, ओके। तुम्हारा पायरोटेक्निक वाला जो चार्ज था, जो उसको जलाने वाला था, वो थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक था। उसका वजह से कंबशन थोड़ा रेट बढ़ गया, तो अंदर की प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा जितनी उसने रेट की हुई थी अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो उस केस पे तुमको लाइक खोजना पड़ेगा तुम्हारा लाइक व्हाट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। अगर ये 500 न्यूटन का तुम्हारा मोटर तुमने डाला है और इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4.53 है, तो लाइक मल्टीप्लाइड विद 4.53, अगर उतना तक का भी अगर लोड झेल पा रहा तो इट्स गुड इनफ। नहीं है तो फिर लाइक यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट। तो यू हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस समवेयर, राइट? हम्म। तो इट डिपेंड्स वेरी यू पुटिंग इट। अच्छा, ओके। सो एक और एग्जांपल दे रहा बस बस सॉरी, हाँ तन मैं तुमको कट ऑफ कर रहा है, बस एक और एग्जांपल दे रहा। रिकवरी के टाइम पे तुम लोग ना जो कॉर्ड्स वगैरह यूज करते हो, ठीक है, बंजी जंपिंग वाली कॉर्ड हो गई या फिर कोई भी नायलॉन कॉर्ड हो गया, यू विल बी टाइंग इट अप विद सम सॉर्ट ऑफ आई बोल्ट या यू बोल्ट ना, जो भी इस सरफेस पे लगे रहेगा, बल्केट्स पे लगा रहेगा। तो तुम्हारा जो पैराशूट खुलेगा ना, वो एकदम झटाक से अपना फोर्स जनरेट करेगा, विच इज कॉल्ड ये क्या बोलते हैं, पुल फोर्स आई गेस, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट वो फोर्स ना बहुत ज्यादा होता है। तो उसका भी लाइक वो जो सडन शॉक्स वगैरह आ जाते हैं, उसको भी मिटिगेट करने के लिए यू हैव टू मेक सम सॉर्ट ऑफ डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन हियर, तो लाइक उतना तक भी वो झेल सके अबव एंड बियॉन्ड। और ये गलती हुआ था एपीजे 2 के टाइम पे, 2019 के कंपटीशन पे। अपना जो ये था ना, जब ड्रोग ओपनिंग वाला जो क्या बोलते हैं पुल फोर्स लग रहा था, वो लाइक थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक था मालूम है, तो उसका वजह से वो वाली बल्केट थोड़ी सी क्रैक हो गई थी। okay, so let's just do the analysis, okay। so yeah, so stress, ठीक है। so here you can see that the maximum stress, ठीक है, इधर आप देख सकते हो तो 60.66 मेगा पास्कल का स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड कौन से पॉइंट पे? ये वाले पॉइंट पे, ओके। एंड व्हाट एल्स यू कैन सी इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट अगर देखना रहा तो ठीक है, देखो पहला अपना ऑब्जेक्ट इधर था, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे था, एंड अब मोटर का फोर्स लगने से थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। सो इट इज़ 0.019 डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। इसका अगर ओरिजिनल ये देखना रहा, ठीक है, एनिमेशन भी देख सकते हैं अपन। टू yeah, so like this the displacement would occur, okay।
ये दिख रहा है क्या आपको एनिमेशन? दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है, सो जब फोर्स पड़ेगा ना तब हाँ, जब फोर्स पड़ेगा ना तब ये अपना जो कंपोनेंट है वो ऐसा डिस्प्लेस होगा। ओके, सो या मेरे को एक डाउट था इस पे, ये जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, उस पे कितना लोड लग रहा है? ये 500 न्यूटन्स पे है कि क्या है? देखना उस पे अभी देख मैक्सिमम लोड तो इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट पे ना सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मैक्सिमम। हाँ, तो लाइक वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जहाँ पे हो रहा है, तो उस पे फोर्स एग्जैक्टली कितनी लग रही है उस पॉइंट पे? हाँ, वो मतलब जब अपन ये करेंगे ना रिजल्ट, मतलब जब फाइनल रिजल्ट निकालेंगे ना रिपोर्ट में, तब मतलब हर एक कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, जितने भी ये पॉइंट्स है ना उन सब का अपने को फोर्स मिलेगा। अच्छा, एक ऑप्शन भी है, मतलब इस पॉइंट पे क्लिक करके अपन देख सकते हैं कि कितना स्ट्रेस है। रुक, देख इस पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो मतलब देखना पड़ेगा, मतलब देख इस पॉइंट पे अब देख इस पॉइंट पे देख इधर मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा ही है कि ना वो ऑप्शन आता है, मतलब उस पॉइंट पे क्लिक करके उस पॉइंट पे अच्छा। कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो अपन देख सकते हैं। बट आई थिंक वो एनसिस में लगता है, वो इधर नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक ये है ना, ऐसा हाँ, ऑप्शन रहता है ना? ये देख इधर। सो देख आप इस पॉइंट पे ना देख 11 से 12 मेगा पास्कल का फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब मेगा maximum। पास्कल टू न्यूटन कितना हुआ? कम है बल्कि, नहीं कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा है एक्चुअली। कितना बोला, 12 ना? या 12.2, ओह, ओके। ठीक है। सो मतलब हर एक पॉइंट पे देख इधर इधर सबसे ज़्यादा एक्ट हो रहा है, ठीक है। वो स्केल एडजस्ट कर ले, वो फिर स्केल के हिसाब से दिखाएगा, मतलब मैक्सिमम वाला चाहिए तो सिर्फ मैक्सिमम का दिखाएगा वो। नहीं, मैक्सिमम तो इधर एक्ट हो रहा है, ये तो इधर दिखा रहा है। हा फक्त मॅक्झिमम बघायचं असेल तर स्केल ऍडजस्ट कर, इकडे साईडला आहे ती. मग मॅक्झिमम इकडे दिसतंय ना आपल्याला. ते एवढं डिफरन्स आहे तर मग क्रॅश वगैरे येण्याची शक्यता असू शकते का? सो क्रॅक कधी होणार, जेव्हा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी 2च्या कमी असेल तेव्हाच क्रॅक होईल, ठीक आहे. जोपर्यंत फॅक्टर ऑफ सेफ्टी 2च्या वर आहे, ठीक आहे, तर मग आपला कंपोनेंट ब्रेक होणार नाही. अच्छा. तिथे म्हणजे त्यांनी नोटिफिकेशन पण दाखवलं होतं की द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इज सफिशियंट, युअर गुड टू गो, असंही पण दाखवलं होतं. जर हां, ठीक आहे, म्हणजे आता ठीक आहे, जर का आपण 500 न्यूटनचा फोर्स याच्यावर ॲक्ट केला आहे आणि आपल्याला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी 4 पॉईंट किती जरी भेटली, आणि जर का आपण 1000 न्यूटनचा ॲक्ट केला असता ना, तर मग फॅक्टर ऑफ सेफ्टी खूप कमी भेटली असती आणि हे ब्रेक होण्याचे पण चान्सेस असते, ठीक आहे. आणि हे दोघं प्लेट्स अलग अलग का बनवतात, मीन्स डिस्प्लेसमेंट होते, मीन्स ते जॉईन केलेले आहेत एक्सटर्नली. नाही समजलं नाही. अरे म्हणजे दोन दोन प्लेट असतील ना, ते जे मधली प्लेट आहे ती टाकली असेल त्याच्यात, तेव्हाच डिस्प्लेसमेंट होत आहे. नाही, ह्या पॉईंटवरती आपले मोटर म्हणजे एक काम असं समज की हे गोल आहे ना, याच्यावरती आपली मोटर आहे, ठीक आहे, आणि ती मोटर डायरेक्ट याच्यावर या प्लेटवरती फोर्स जनरेट करते, त्यामुळे डिस्प्लेसमेंट होत आहे. अरे वो खाचा वहाँ पे बनाया खाली अपने मोटर को सटा सके. अरे तो अख्खा एकच कंपोनेंट आहे, लाईक सेपरेट कंपोनेंट्स नाही आहेत. सेपरेट कंपोनेंट नाही तो, ठीक आहे, हा एकच कंपोनेंट आहे पूर्ण. हा, ओके ओके, सब कळालं. इथे आपण वेल्डिंग वगैरे करून असा एक शेप बनवलाय फक्त, असं समजा. पण जर का तो मीन्स एकच कंपोनेंट आहे, सर्वात जास्त फोर्स मिडल वाला पार्ट वरती लागायला हवा ना. हो, म्हणजे पण मग इथे सर्वात जास्त फोर्स ह्या पॉईंटवरती दाखवतोय, ठीक आहे, ह्या पॉईंटवरती का, तर मग मला तरी वाटतंय की बहुतेक हे फिक्स पॉईंट आहे ना, तर मग फिक्स पॉईंटवरती सर्वात जास्त फोर्स लागतोय का, तर मग या म्हणजे जिथे आपण बोल्ट करणार ना, त्यांचं उलट मेन काम आहे का, तर मग ते पकडून ठेवायचं आहे त्यांना. जर का त्यांनी पकडून ठेवलं नाही तर मग ही प्लेट पण पुढं निघून जाईल, ठीक आहे. तर त्यामुळे या पॉईंट्सवरती मॅक्झिमम फोर्स ॲक्ट होतोय, हे मला तरी असं वाटतंय. जिथे आपण फिक्स पॉईंट केलंय ना, त्या पॉईंट्सवरती मॅक्झिमम फोर्स ॲक्ट होतोय. आपण तिथे फोर्स एकाच पॉइंटला लागतं असं का अज्युम करतोय आपण, म्हणजे काय त्या पूर्ण म्हणजे काय सेंटरचं सर्कल आहे तेवढ्या अख्ख्या पॉइंट वरती लागणार ना.
ती मोटर इथेच देणार ना, त्या मोटरचं तेच तर ना, पण आपण हाँ तो वो कर सकते हो, वो CNC ऑप्शन है अजय। वैसे तुम लाइक एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना सकते हो सिलेंडर जैसा, और यू कैन जस्ट स्पेसिफाई ओवर देयर कि ये सिलेंडर इतना तुम्हारा न्यूटन तक का फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ओके। वो सिमुलेशन में लाइक वो थोड़ी और एक्यूरेसी बढ़ा देगा। वही पूछ रहा है ना कि वो पूरी फेरी पे क्यों नहीं डाल रहा। हाँ 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 हाँ। हाँ तो लाइक वो उससे भी कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है। ये तो लाइक सिंपल बेसिक्स के हिसाब से हम लोग बता दें कि हाँ एक पॉइंट पे अगर लग रहा है तो इस तरह से। ओके। ओके। सो या सो बस अभी इतना ही है। स्ट्रेन मतलब जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओके, मतलब जितना उनका जो वैल्यू रहेगा ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इतना ये स्ट्रेन है। सो बस इतना ही। अब लाइक दिस वी परफॉर्म द सिमुलेशन। सो लाइक अगर कुछ लाइक डाउट्स वगैरह होगा तो फिर पूछ सकते हो। अरे वो फिक्स कैसे करेंगे? मतलब वो तो अंदर रॉकेट के मतलब जब असेंबल करेंगे तब फिक्स करना पड़ेगा ना, तो फिक्स कैसे करेंगे? नट नट बोल्ट बाहर से अरे होगा ना? बाहेर से हा. बाहेर से हे बाय हे आपण ट्यूबमध्ये टाकू, ठीक आहे। आपली जी बॉडी ट्यूब आहे त्या ट्यूबमध्ये टाकून त्या ट्यूबला ड्रिल करायचं, ठीक आहे। ड्रिल केल्यावरती म्हणजे असं ड्रिल करायचं की जेव्हा आपण नट टाकू ना ट्यूबमधून तर तो याच्यात पण जायला हवा। ओके, समजलं का तुला? थांब मी हो, तुला समजलं, परत समजलं. एकदा ती असेंब्ली दाखवतो, आपण फिक्स कसं केलंय। वो एक्चुअल रॉकेट में उस पे फोर्स कितना रहता है, मतलब एक्चुअल फोर्स कितना रहता है रॉकेट पर? जितना मोटर जनरेट करता है उतना वो एक्चुअल फोर्स रहता है। अगर मोटर मतलब वो मोटर पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ये वाली जो मोटर है ना, ये 500 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर रही है, तो फिर इस कंपोनेंट पे 500 न्यूटन का फोर्स ही एक्ट होने वाला है, ठीक है। बट ये आगे वाले जो कंपोनेंट है ना उन पर वो एक्ट उतना 500 न्यूटन का एक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। सो उधर अपने को अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो भी बता दें तो लाइक उनको ठीक ठाक समझ में आएगा। वो है ना। ट्रांसफर मतलब देख अभी ये लेट जस्ट अज्यूम दैट द लोड इज ट्रांसफरिंग इन दी वाई डायरेक्शन, ठीक है, ऑन ऑन दिस साइड। तो आप ये कैसे बताओ, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा। अच्छा नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर लोड जा रहा है रॉकेट के क्या बोलते हैं थ्रस्ट बल्केट से नोजकोन की तरफ। तो अभी वहां पे देखो सबसे पहला कांटेक्ट किधर हो रहा है, अपना थ्रस्ट बल्केट पे हो रहा है। थ्रस्ट बल्केट पे लगी हुई नट्स हो रही है, ठीक है, नट्स पे उसने फिक्स किया था ना, तो लोड उधर से ट्रांसफर हो रहा और वो पूरे फ्यूसेलाज से ऊपर जा रहा। तो वो फ्यूसेलाज के कांटेक्ट पे जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, ये बीच में कपलर हो गया, पेलोड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सब इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे एंड दिल गो अप। ओके, तो लाइक उधर वो प्रोपेल हो जाएगा एंड देन दिस इज हाउ लाइक द लोड ट्रांसफर्स। समझ रहे हो? सही है हाँ। हाँ लाइक देखो, अगर इधर से ऐसा समझो कि अगर इधर से 1000 न्यूटन का फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। सो ये 1000 न्यूटन का फोर्स रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, एक एक कंपोनेंट पे, ठीक है। और वो मतलब पूरा 1000 का 1000 नहीं जाने वाला, ठीक है। सो लाइक कुछ तो भी वैल्यू रहेगी उनकी। सो लाइक दैट इट विल ट्रैवल थ्रू ईच कंपोनेंट्स, ओके। एंड अबाउट ये जो लॉसेस भी आती है ना उसकी वजह से हम लोग को अपना जो एस्टिमेशन रहता है ना थोड़ा ओवरशूट करने के हिसाब से रखना पड़ता है। तो लाइक एक सेफ नंबर तुम्हारे डिजाइन के ऊपर रहता है, तुम कितने कंपोनेंट्स खुद से बना रहे हो। अगर तुमने मैक्सिमम सारे पार्ट्स खुद से बनाए हैं ना तो तुमको 5% एरर लाइक assumption रखना होगा। लाइक इट्स लाइक हिडन ट्रायल पे ही पता चलेगा ये चीज। बट द नंबर दैट आई लाइक टू टेक इज 5%, ठीक है। अगर तुमको लाइक आधे किलोमीटर जानी है उसका 5% निकालो, कितना हुआ? 25 मीटर। तो लाइक 525 मीटर का तुम ऐसे एपोजी सेट करोगे एंड देन वो तुम्हारा लाइक काफी क्लोज आ जाएगा तुम्हारे डिजाइन से। और ये जो 5% नंबर है ना वो लाइक प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड है। हाँ, इसके पीछे कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है मेरे पास। देखो इधर मतलब अंदाज लगाना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। मतलब जो भी अपन कुछ करने वाले, ठीक है, उसका प्लानिंग और मतलब उसका सॉल्यूशंस, ठीक है, एंड अजम्पशन, ये सब ज़रूरी है काफ़ी। सो एंड कोई तो भी पूछ रहा था कि फिक्स कैसे करते, तो इधर देखो, ठीक है। ये जो अपना जो बल्केड है ना, इधर मतलब एक होल किया, ठीक है,
और वो होल अपना बल्कहेड में से जा रहा है और बाहर से बोल्ट कर दिया। ओके, सो लाइक दिस वी फिक्स द कंपोनेंट। समझा क्या? हाँ ऐसे क्या टी ब्रांड को स्पॉन्सरशिप मांगते क्या? हाँ मांगती ना ब्रो, मांगती ना भाई। मांगती ना भाई। मेरा हिंदी ऐसा है सर है। Yeah, so yeah, I think I'm done with my simulation. So अगर स्टिल किसी को कुछ पूछना है तो फिर बोलो। एक चीज और बता रहे, जैसे ये शेप्स के हिसाब से इसे सिमुलेशन की ना, देर आर अदर वेज एज वेल। तुम लाइक दूसरी चीजों का भी सिमुलेशन कर सकते हो। ओके, सो लाइक अगर तुम समझ लो रिसीवर्स या फिर ट्रांसमीटर्स रखे हुए अपने ट्यूब के अंदर में, और तुमको देखना है कि ओवरऑल इम्पीडेंस वगैरह कितना जनरेट हो रहा है, तुम जितनी भी मटेरियल आसपास रख दो, ठीक है, तो लाइक उसको जीएनएसएस ये सिमुलेशन बोलते हैं। वो दिखाता है कि कितना इम्पीडेंस जनरेट हो रहा है तुम्हारे ओवरऑल एनवायरनमेंट से। अगर समझ लो तुमने एक सिंगल एंटेना रखा हुआ है, तो वो एंटेना जब ट्रांसमिट करेगा डेटा, उस पर कितनी इंटरफेरेंसेज आएंगी, ओके, विद द करंट सेटअप यू आर यूजिंग। इसीलिए तो वो एक तरह का सिमुलेशन हो गया। अगर समझ लो तुमको अपनी ड्रैग कैरेक्टरिस्टिक्स कम करनी है फॉर योर नोज कोन और योर बोट टेल, ओके, तो तुम उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। देखोगे, हिट एंड ट्रायल करोगे, बड़ा छोटा करोगे नोज कोन को, और उसके हिसाब से ओवरऑल एयर फ्लो किस तरह से पार हो रहा है, यू को ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो वो तुम्हारा हो गया कॉम्बिनेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। उसी तरह से नोजल का भी ऑप्टिमाइजेशन होता है। तुम्हारा ओवरऑल जब ये फ्लो फ्लो हो रहा है ना, तो क्या बोलते हैं, मैं ना टर्म्स निकल रहे मुंह में से, सॉरी टर्म्स गायब हो रहे मुंह से। इट्स कॉल्ड ये मोंटे कार्लो सिमुलेशन। वो तुम्हारा जब मोटर बर्न होगा, ओवरऑल नोजल में से किस तरह से उसका फ्लो सेपरेट होगा वो देखने के लिए है। तो नोजल के शेप के ऑप्टिमाइजेशन के लिए यू यूज मोंटे कार्लो सिमुलेशन। तो बहुत अलग अलग तरीके से तुम लोग कर सकते हो। देयर इज लाइक एन नंबर ऑफ लिस्ट इन दिस, और इंडस्ट्रीज इसको बहुत वैल्यू करती है। दैट इज व्हाई दे हंट फॉर इंजीनियर्स हु आर रियली गुड एट दिस। ओके, हमारे कुछ मेंबर्स है एलुमनी नेटवर्क में, दे आर लाइक अच्छे बड़ी बड़ी कॉलेज में गए जस्ट बिकॉज दे वर गुड एट दिस। ओके, सो अगर इसका रिजल्ट चाहिए आपको तो फिर इन द रिपोर्ट क्लिक हियर, जस्ट प्रीव्यू। सो इसमें आपने को पूरा समरी मिलेगा। सो या देखो इधर जो कंपोनेंट है जिधर अपन ने मेशिंग किया तो उस पर इतने नॉड्स है एंड इतने एलिमेंट्स है, ठीक है, एंड ईच ऑफ देम हैज़ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड इसका मेश भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो या okay, so I'm done. So like if you guys want to leave you can. ऐसे ही भगा देगा। आसिफ भाई अभी नेक्स्ट क्या? हाँ भाई, कल मीटिंग रखेंगे हम लोग, ठीक है, तो प्रॉपर नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करेंगे। आज रात को मैं अपनी टीम के साथ भी इसलिए मीटिंग रख रहा हूँ 10 बजे के आसपास। किसी को अगर आना होगा तो लाइक यू आर फ्री टू ज्वाइन, बट एवरीथिंग दैट आई मेंशन ओवर देयर टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। कुछ भी चेंज